Good morning to all of you, my dear student. How are you? Today I am present some important topic of book second, class 12th history, the chapter 2, Bhakti Sufi traditions. Actually, Bhakti Sufi traditions है क्या? This was the traditions. It prevailed in India from medieval period. Medieval period from 7th or 8th century and till the 18th century. In this period, there were many people, religious people, who spread their knowledge, who spread their thought and their education in Indian subcontinent. Even in India's culture and religion was very in effect at that time. So let us start the condition of Indian society in medieval period. What was the condition before the medieval period in India? Actually, in this period, Hinduism spread everywhere, and this was the time when many beliefs spread in India. People believe different thoughts. They worship different god. Caste also prevailed in India. Lower caste people suffer more in India, and upper caste people were enjoying. But they were controlled by the Sultanate or by the ruler who came from Arabs. So start in India, the conditions was very bad. Different religions was there, and people different. Bhakti movement was spread. People of India believe in Nanas and Alvas. These were the belief in South India. Now, religious belief and practice, Bhakti, Islam and Sufi. When Sultanate period prevailed in India, from the Mahmud of Ghazni, Indian society was deeply impacted by the Islam and Sufi or Bhakti. Bhakti movement was started or from India also. तो इसमें कुछ लोग हुए हैं जो बहुत फेमस ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत मूवमेंट चलाए अबाउट द भक्ति मूवमेंट. और भक्ति मूवमेंट के वो मूवमेंट ऐसे थे जिसके द्वारा बहुत सारे टीचिंग लोगों को दी गई. इसमें गुरु नानक जी, मीराबाई, कबीर दास और रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और नामदेव, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है और भारत में भक्ति मूवमेंट को इन्होंने शुरू किया था. तो इसमें क्या होता है कि रिलीजियस बिलीफ में प्रैक्टिस में क्या होता है, भक्ति मूवमेंट चला. इस्लामिक रूल्स भारत में लागू हो गए थे, शरिया और खलीफा आप लोग सब जानते हैं. उन्होंने ऐसे इंडियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था एट दैट टाइम, और इंडियन सोसाइटी को कन्वर्जन का काम भी किया था. तो इंडिया में एक समाज इस तरह का प्रिवेल हो गया था जो केवल इस्लाम धर्म को ही मानता था. नेक्स्ट, द भक्ति ट्रेडिशंस, सगुन एंड निर्गुण. एक्चुअली भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया एंड फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ ऑल्सो. साउथ इन इंडिया भक्ति मूवमेंट बिलीव इन सगुन और निर्गुण. देयर वर टू सेक्ट. अगर हम बात करें दो इसके पार्ट बन गए थे, एक सगुन एक निर्गुण. सगुन पीपल और फॉलोवर बिलीव दैट देयर इज अ इमेज ऑफ द गॉड. दे बिलीव different ideas of God. They worship different Puranic and Vedic systems. They read Bhagavad Gita, Mahabharata, Puran, Ved और Upanishad. And Nirgun also believe in same features, but they have not worshipped any kind of statue or image. They were Nirgun. They wanted that there is no image of the God. भगवान की कोई इमेज नहीं है, और उन्होंने इसको एक बिना मूर्ति के रूप में ही इसको जो है इंडिया के अंदर रिवील किया था. उसमें से एक नाम अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो वो है कबीरदास. कबीरदास जी ने इसी के बारे में कहा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, तो निर्गुण सगुन हो गया. देन अलवर नैनर्स. एक्चुअली अलवर नैनर्स दे वर द टू मेन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया एंड दे वर द फॉलोवर ऑफ डिफरेंट गॉड. अलवर बिलीव इन विष्णु, दे वर्शिप Vishnu, and this movement was started by the lord of the people and they were against the Shiv. इसको हम कहते हैं वैष्णव और शिव. तो शैव और वैष्णव जो संप्रदाय जो कम्युनिटी बनती है वो अलवर और नैनर से बनी. नैनर्स हु वर्शिप एंड फॉलो टू लॉर्ड शिव. लॉर्ड शिवा को मानने वाले जो लोग थे वो नैनर कहलाते थे. और दोनों में इतना बड़ा मतलब अंतर था इनमें कि एट दैट टाइम दे started battle or they
अगेंस्ट टू ईच अदर, मतलब भगवान के नाम पे लड़ाइयाँ लड़ी अपने से बड़ा दिखाने के लिए। नाउ नैना अल्बर्ट क्लियर लिंगायत, actually लिंगायत was also prevalent in southern India. Many people worship शिव as a लिंग, मतलब उन्होंने भगवान शिव को एक लिंगायत के रूप में मतलब जो है वर्शिप करना शुरू कर दिया था, और इसमें बहुत सारे लोगों ने एक अलग संप्रदाय बना दिया था। तो ये संप्रदाय केवल भगवान शिव की मूर्ति को न मानकर उस लिंगायत को चलाते थे। नाउ रिलीजियस बिलीफ इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ एंड जोगी। हम बात साउथ इंडिया से बात नॉर्थन इंडिया में आते हैं, तो नॉर्थन इंडिया हैव बिलीव इन डिफरेंट आइडियाज, जिसमें क्या थे, मैनी पीपल बिलीव इन नाथ एंड जोगी। नाथ जैसे गोरखनाथ, ठीक है, बालकनाथ, जैसे बहुत सारे लोगों, नाथ पंथ ये भारत में नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, और बड़े स्तर पर जो है ये भारत में राजस्थान और पंजाब, उत्तर प्रदेश जो प्रांत उस समय था उसमें प्रिवेल हो रहा था। नेक्स्ट जोगी, जोगी ऑल्सो जैसे जोगी जो होते हैं एक ही संप्रदाय इस तरह का चला, जिसमें क्या हुआ कि लोगों ने या मतलब जो है इस जोगी संप्रदाय को चलाना शुरू कर दिया था। ये इस तरह के संप्रदाय भारत में विभिन्न मतावली वाले लोग थे। दे वर डिफरेंट टू ईच अदर एंड दे वर्शिप टू डिफरेंट गॉड। ओके, नाउ नेक्स्ट इस्लामिक बिलीफ 712 actually it was the first conquered by the Arab in India, or Islamic influences spread suddenly by the Mahmud of Ghazni. After some times they were followed by the Muhammad Ghori, and from 1206 from 1206 it was the time when the first Sultanate dynasties set up in India. In Delhi, the अगर देखा जाए सलेम डायनेस्टी बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ से क्या होता है, इस्लामिक रूल भारत में इस्लामिक टीचिंग, रिलीजियस और अकॉर्डिंग टू द कुरान ये सब फॉलो होने लगे थे। एक इस तरह का संप्रदाय बना जिसने क्या किया, इस्लाम धर्म को ही बड़े स्तर पे उन्होंने चलाया था। और डू यू नो दैट अबाउट द मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद गजनवी कहलाते हैं बुद्ध सिकन, because he worship only Allah and other caste, other community or religious people were their enemy, इसलिए इसको बुद्ध सिकन कहा जाता है। बुद्ध सिकन अरबी फारसी भाषा में दिया गया है, जिसका मतलब होता है who destroyed the statues, जो मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक को कहा जाता है इसमें ये बुद्ध सिकन। तो उसने किसी भी धर्म को नहीं छोड़ा, केवल इस्लाम धर्म का प्रचार किया। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं सल्तनत नगर में जिन्होंने केवल इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। दे कन्वर्टेड मैनी टेम्पल्स इनटू मॉस्क्यू, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए मंदिरों को तोड़ा और इसमें। नाउ सूफी टीचिंग खानका सिलसिला, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूफी वर पीपल हु वर रिलीजियस कम्युनिटी, they were away from the regular or from the domestic life, and they believed that singing, okay, and music, ठीक है। तो ये जो है सिलसिला जो सूफीवाद में से चलता है, there are many teaching of the Sufi. They believe in simplicity, they believe in music, they were against the violence, and they teach to people in a good way truth, okay। नेक्स्ट खानका टीचिंग, खानका और सिलसिला। खानका एक्चुअली दिस इज द हाउस ऑफ द हु वर लीड बाय द सूफीज, एंड सिलसिला एक्चुअली का मतलब होता है, इसका होता है रेगुलरिटी, निरंतर। तो इसमें सिलसिले का मतलब है कि ऐसे ही कुछ संप्रदाय भारत में बन चुके थे एट दैट टाइम। दे वर डिफरेंट आइडियोलॉजी बाय द सूफीज। जैसे आपको चिश्ती है, इसमें चिश्ती संप्रदाय हो गया है ना, और नकर बख्श हो गया इसमें, नक्श बख्शी हो गया इसमें, और बहुत सारे संप्रदाय थे इसमें जो उस समय प्रिवेल हो रहे थे। इसमें चिश्ती सबसे फेमस, नक्शबंदी भी है इसमें, और सबसे फेमस और सिलसिला। नेक्स्ट चिश्ती इन इंडिया, ज़ियारत एंड क्वाली। मैंने आपको बता दिया दैट सूफी बिलीव इन म्यूजिक एंड सिंगिंग। तो कवाली में लोग जाते थे, द सॉन्ग ऑफ द गॉड अल्लाह, दिस वर नोन एज द सॉन्ग ऑफ द अल्लाह। They were appreciate they singing in a good way that people lived in that area and they worship Allah. Next, language and communication. Actually, Sufi
language. Which language spoken by the Sufis? These were came in India from the outsider Arab countries से आए थे. So they use simple local language according to the people. लोकल लैंग्वेज सेम एज दिल्ली सल्तनत पीरियड में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे बादशाह हुए हैं जिन्होंने डिफरेंट इन चीज़ों को किया है. जैसे कि लोकल लैंग्वेज जैसे कि अरबी फारसी, और लोकल लैंग्वेज उर्दू, एंड लोकल लैंग्वेज भारत में हिंदी ऑल्सो. नेक्स्ट, डिवोशनल पाथ इन नॉर्थ इंडिया. हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देयर वर मैनी पीपल who wanted to share their ideas in India. They were known as the Sufism. The main important teachers who started in India the Sufi war. जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अगर देखा जाए तो ही वाज उनकी डेथ होती है भारत में 1235 के आसपास अजमेर में उनकी चिश्ती संप्रदाय सबसे ज़्यादा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह लोग देखने के लिए जाते हैं. नेक्स्ट, जो दूसरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज वेरी फेमस चिश्ती सिलसिला के जो वो कहलाते हैं. 1235 में ही हुआ एट दिल्ली, इनका मेन स्थान था. नेक्स्ट इसमें दिया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ही वाज 1235. नेक्स्ट में दिया है शेख फरुद्दीन गजे सिकंदर 1265 में. निजामुद्दीन औलिया 1325. निजामुद्दीन औलिया एक्चुअली देखा जाए तो उन्हें 12, अगर देखा जाए 12 सुल्तान का उन्होंने राज्य देखा था. 12 सुल्तानों का उन्होंने कार्यकाल देखा था और 12 सुल्तान उनके नाम में उनकी मौत हो गई थी. तो ही वाज द ग्रेट. और लास्ट शेख नजरुद्दीन चिरागे दहली. ठीक है, तो ये कुछ चिश्ती संप्रदाय के लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ इंडिया में किया है. अब इसमें जो लास्ट पोर्शन है हमारा डिवोशनल पाथ इन नॉर्थ इंडिया, कबीर, नानक एंड मीराबाई. अगर इनकी बात करते हैं तो कबीर दास के बारे में सब जानते हैं. कबीर दास ने बीजक और इनको जो आदि ग्रंथ जो साहिब है, गुरु ग्रंथ साहब है जो गुरु नानक जी का, उनकी कुछ शिक्षाओं को उन्होंने लिया था. कबीर वाज अ फेमस पर्सन. ही बिलीव्ड इन निर्गुण एंड ही हैड बिलीव इन he was against science but he believed in religion, but he wanted there is no image statue of the God or Allah. उनके लिए कबीर दास जी ऐसे व्यक्ति थे, दे वर बोथ हिंदू और मुस्लिम, उनको सबको पूछते हैं. तो कबीर पंथी और सब उनको कहा जाता है. सब आप लोगों सब ने पढ़ा हुआ उनके बारे में, कबीर दास जी के बारे में. नेक्स्ट में बाबा गुरु नानक जी. बाबा गुरु नानक आप सभी जानते हैं. गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब सिख संप्रदाय जो कम्युनिटी वाज स्टार्टेड बाय द गुरु नानक, है ना. ही वाज बोर्न इन तलवंडी आप सब जानते हैं, पाकिस्तान पेशावर के पास उनका जन्म हुआ था. और आदि ग्रंथ में इनकी गुरुवाणी इसको कहते हैं, उनकी शिक्षाओं का संकलन उसमें किया गया है. एंड ही स्टार्टेड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, जो बाद में सिख धर्म कहलाया था. और इसके फॉलोवर आप सभी जानते हैं. इसमें जो सबसे पहले गुरु थे, 10 गुरु हैं कि देयर वर 10 टीचर्स ऑफ सिख. फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु नानक और लास्ट गुरु गोविंद सिंह. गुरु गोविंद सिंह सबसे लास्ट में होते हैं. तो वो केवल देन किसकी थी? वो सब देन किसकी थी? केवल गुरु नानक जी. लास्ट में दिया है मीराबाई. मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई. ये सब आप लोगों ने भजन सुने हैं. एंड दीज वर वेरी फेमस एट द राजस्थान एंड नॉर्थन इंडिया. मीराबाई के बारे में आप सभी जानते हैं. और ये मीराबाई भक्ति ट्रेडिशन में भारत की मीराबाई ऐसी थी. ही वर्शिप टू द लॉर्ड कृष्णा in North India, or he was against to the marriage and the life of the woman at that time. And he teach to women lot of things. He believed that the true bhakti by the people for God or Krishna. And last of them, she became dead. Mirabai always want that Krishna belonged to her. Okay, students. Okay, thanks.